A very good afternoon to all the dignitaries. I, Dr. Prerna Man, feel delighted and honored to welcome you all to a musical meditation program for stress-free life on the occasion of Ganpati Mahotsav, under the guidance of Sri Mohan Garg, General Secretary Mates. We are fortunate to have the presence of Sri Mohan Kumar Garg, Joint General Secretary Mates, Sri Satish Garg, Secretary Mates, Sri Amit Agarwal ji, Secretary Mates, Sri Asha Garg, Trustee Mates. It's an honor to welcome our esteemed guest for the event, Acharya Vinod Sharma ji. Please give him a round of applause. We also have with us Sri Hari Narayan ji from Tirath Vikas Trust and Srimati Annu Gupta ji. We welcome you all. We also welcome Professor J.V. Desai, Director General MATE, Professor Neelam Sharma, Director MATE, Professor Rajni Malhotra Dhingra, Director Mains, Professor Sanjeev Marwa, Director MABS, Professor S.S. Deswal, Dean MATE, Professor Sachin Gupta, Dean R&I MATE, all the HODs, faculties and dear students. No event is truly complete without the invocation of Ganesh Vandana. इधर बैठ जाओ कहीं एक जगह ये May I now humbly request Sri Mohan Garg ji and other dignitaries to welcome Acharya Vinod Sharma ji with a sapling and a shawl. Please give a round of applause. गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशाय
performance. On the sacred arrival of Lord Ganesha, MATES presents a meditational program called Soulful Symphony, designed for students to enhance their mental and physical well-being. This 1 to 1.5 hour program will teach students powerful techniques and the benefits of meditation and how it can improve their mental health, focus and ability to handle life's challenges and pressures. It's a highly useful program for students and teachers both. Acharya Vinod Sharma ji is a renowned meditation guru and accomplished musician. Through his melodious voice and profound knowledge of Upanishads, Purans and Bhagavad, he dedicates himself to spreading the benefits of meditation to people from all walks of life. For the past 18 years, Acharya ji has been consistently organizing various meditation workshops that cater to diverse groups, including children, homemakers, business professionals, and students. These programs aim to provide mental peace and benefits to all participants. His programs have gained international recognition, with him having conducted meditation sessions in 14 countries. Many notable individuals, including Bollywood actors, bureaucrats, and politicians, have benefited from his meditation programs. Acharya ji emphasizes the importance of a calm mind alongside good education for students to have a bright future. He believes that a peaceful mind enables individuals to face life's challenges with ease and resilience. Let us all join our hands in reverence for a musical session by Acharya ji. Please give a round of applause. देखिए होता क्या है कि जब भी आप कोई गैजेट खरीद के लाते हैं, कोई मोबाइल लाते हैं, लैपटॉप लाते हैं या और भी तरह तरह के टेक्नोलॉजिकली आप बड़े एडवांस हैं इन दिनों, तो जो भी आप गैजेट लाते हैं उसके साथ एक मैनुअल आता है उस गैजेट का। एक मोबाइल आता है तो आपको एक प्रिंटेड मैनुअल एक बुक की फॉर्म में दिया जाता है कि कभी आपको कुछ ना समझ में आए तो उसमें खोल के आप देख लें अगर कहीं आप अटक गए हैं। लेकिन ये जो हमारा शरीर है, इसके साथ ऐसा कोई मैनुअल नहीं आता कि अगर आप किसी इमोशनल डिसबैलेंस में फंस गए हैं, आप किसी मेंटल पेन में फंस गए हैं, आपको कोई शॉक लग गया है या आप कहीं, जैसा होता है इस उम्र में, आप कहीं बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं और अचानक आपको डिटैचमेंट का सामना करना पड़ रहा है, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई मैनुअल नहीं है कि जिसमें से आप देख लें और पढ़ समझ के उस इमोशन से, उस स्ट्रेस से, उस एंजाइटी से, उस डिप्रेशन से निकल जाएं। लेकिन हमारे जो उपनिषद हैं, हमारे जो वेद हैं, हमारे जो पुराण हैं, स्मृतियां हैं, शास्त्र हैं, उनमें युगों युगों से इस तरह की बहुत सारी टेक्निक्स, इस तरह की विधियां दी गई हैं कि आप अपनी लाइफ के किसी भी डायलेमा में हैं, किसी भी परेशानी में हैं, किस तरह से आप उससे निकल सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर आप अपने एग्जामिनेशन के दिनों में किसी परेशानी में फंस जाते हैं जो आपके दिमाग को उलझाए हुए है लगातार और आपको परेशान किए हुए है, उस समय पे आपको बड़ी ज़रूरत पड़ती है और जो चीज़ हथियार की तरह आपके काम आ सकती है वो मेडिटेशन कहलाती है। ओरिजिनली भगवान गणपति आए हुए हैं, जो ओरिजिनेटर हैं मेडिटेशन के, वो भोलेनाथ जो उनके पिता हैं, जिनको आदि योगी कहा जाता है, जिन्होंने ओरिजिनली, अगर आपने सुना हो तो कश्मीर शैविज्म में 2 किताबें हैं, एक का नाम है शिव सूत्रास और दूसरी का नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। इसमें मां पार्वती, हाँ इसको थोड़ा वॉल्यूम अच्छा है, मां पार्वती जो हैं वो भगवान शिव से प्रश्न करती हैं अपनी जीवन के बारे में, अपनी शरीर के स्वास्थ्य के बारे में, मेंटल और फिजिकल हेल्थ के बारे में, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो उसमें डिस्कशन है वो है ज्ञान के बारे में। आज हम बाहरी तौर पे बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम खुद को नहीं जानते, अपनी शक्ति को नहीं पहचानते। मेडिटेशन हमें हमारी ही शक्ति से जोड़ने का काम करता है। मेडिटेशन हमें हमारा खोया हुआ फोकस वापस दिलवाने का काम करता है।
मेडिटेशन हमें हमारा गुम हुआ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर जगाने का काम करता है। तो इसलिए अगले कुछ मिनटों तक अगर आप यहाँ कनेक्टेड रहते हैं इस डिस्कोर्स से, तो आप अपने भीतर एक जो सौगात लेके जाएंगे वो होगा मेंटल पीस। जैसा कि मैंने उपनिषदों की बात की थी, तो उपनिषदों में हमारे शरीर को एक उल्टा पेड़ कहा गया है, एक ऐसा वृक्ष कि जिसकी जड़ें ऊपर हैं और उसकी शाखाएं नीचे हैं। इन जनरल जब आप किसी पेड़ को देखते हैं तो उसकी जड़ें नीचे होती हैं, शाखाएं ऊपर निकली होती हैं। लेकिन ये जो हमारा पंच तत्व का शरीर है, इसमें जो जड़ें हैं वो आपका ब्रेन है, ऐसा उपनिषद के ऋषियों ने बताया। तो अगर इसको पोषण देना है तो आपको अपने मस्तिष्क को पहले शांत करना पड़ेगा। इस शांति से ही आप बाकी सभी उद्देश्यों की पूर्ति कर पाएंगे। इसलिए भी मेडिटेशन बहुत जरूरी है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि गैजेट्स के साथ मैनुअल्स आते हैं, लेकिन इस शरीर के साथ कोई मैनुअल नहीं आता। हमारे शास्त्र ग्रंथ ही वो मैनुअल हैं जो जिनको पढ़ के, जिनकी ज्ञान को समझ के हम अपने आप को इतना मजबूत बना सकते हैं अंदर से कि फिर दुनिया की कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं पाती। आप देखते हैं हम सभी की लाइफ में कभी ना कभी कुछ ऐसे टाइम आते हैं, हमारे जीवन में कुछ ऐसे समय आते हैं जब हमें अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है कि हम इस इमोशन का क्या करें, हम इस दुख से कैसे निकलें, हम इस पीड़ा से कैसे बाहर आएं। उस वक्त हमारे काम अगर कोई चीज आ सकती है तो वो परंपरा से शुरू हुआ भगवान शिव के द्वारा दिया गया ज्ञान, जो उन्होंने माता पार्वती को दिया जब उन्होंने उनसे ये प्रश्न किए कि आने वाले समय में जब कलयुग बढ़ेगा तो मनुष्य मानसिक तौर पे बहुत अशांत हो जाएगा। उस अशांति को प्रभु कैसे दूर किया जाएगा। 112 टेक्निक्स, 112 विधियां भगवान शिव माँ पार्वती को मेडिटेशन की बताते हैं, जिनमें से 2-3 को हम आज यहाँ प्रैक्टिस करने वाले हैं। और कमोबेश सारी विधियां आपकी ब्रेथ से जुड़ी हुई हैं। अब ये एक मॉडर्न साइंस का रिसर्च भी है प्रॉपर, इस पर काफी रिसर्च पेपर आ चुके हैं कि हमारी सांस का और हमारे मन का आपस में बड़ा एक रिश्ता होता है। जो हमारा ब्रेथ है ये ब्रिज है हमारी फिजिकल बॉडी और हमारी सटल बॉडी के बीच में। तो जितना स्थिर आपका सांस होता चला जाता है, आपकी ब्रीदिंग, ये इनहेलिंग एक्सहेलिंग जितनी ज्यादा काम होती चली जाती है, आपका मन भी उतना ही ज्यादा गहरा, शीतल और शांत होता चला जाता है। इसलिए क्योंकि ये हलचल जो अब काफी हद तक मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत हद तक बच्चे बिल्कुल एकाग्र होकर सुन रहे हैं, ये और भी शांत हो जाए उसके लिए हम पहले एक विधि से शुरुआत कर लेते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम थोड़ा सा म्यूजिक के साथ भी इसमें आगे जाएंगे और इसकी डेप्थ में जाके देखेंगे कि आखिर ये पीस ऑफ माइंड क्या है, आखिर ये मन की शांति क्या है, क्या हम भी हर वक्त शांत रह सकते हैं, क्या हमारे मन में चलने वाले प्रश्न कभी खत्म हो सकते हैं, क्या हमारा मन जो इतना स्ट्रेसफुल रहता है कोई ऐसा पॉइंट आ सकता है कि थोड़ी देर के लिए रिलैक्स्ड हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आप लोग थोड़ा सा अगर कमर सीधी करके बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए, मैं ज्यादा नहीं आपको थकाऊंगा, और अपने घुटनों पर अपने हाथ इस तरह से रख लीजिए। अब जब आप सांस भरेंगे तो एक ध्वनि को श्रवण करना है अपनी सांस में। जब सांस अंदर जाए तो ध्वनि होगी सो, और जब सांस बाहर आए तो ध्वनि होगी हम। इस सोहम को आपने अपनी सांस के अंदर महसूस करना है। इस तरह से भरिए सांस अंदर, लंबा गहरा सांस भरिए, छोड़ दीजिए, फिर से सांस भरिए, छोड़ दीजिए। 5 बार करेंगे, 2 बार हो गया है, फिर से सांस भरिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी बच्चे, छोड़ दीजिए। अब अगर
थोड़ी देर रिलैक्स होके अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और अपने चश्मे को उतार दीजिए अगर पॉसिबल है सबके लिए। अब शांतिपूर्वक तरीके से अपने पूरे फोकस को अपनी सांस पर लेकर आए। पहले आपने, जब मैं सजेशन दे रहा था आपको, आपने हमारे कहने से सोहम शब्द को सुना अपनी सांसों में। अब ऐसा महसूस कीजिए कि नेचुरल सोहम की रिदम आपकी सांसों में चल रही है और आप उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। शांत हो जाए बेटा, पीछे सब लोग देखो आगे ध्यान कर रहे हैं। आपको अगर जाना है बेटा तो बड़े पीसफुली चले जाएं। सांस इनहेल कर रहे हैं आप, एक्सहेल कर रहे हैं। मेरे साथ ओंकार का गुंजार करेंगे। पहले सुन लेंगे कि किस रिदम में वो आ रहा है, फिर आप कीजिएगा। ओ शुरू करें सभी बच्चे। ओ थोड़ा सा लाउड करें ताकि सुनाई भी दे आसपास। ओ बहुत अच्छा। ओ मन ही मन, ये जो जगह मैं जहां टच कर रहा हूं इसको थर्ड आई सेंटर कहते हैं। जब आपने एंटर किया होगा हॉल में तो यहां पर आपका एक तिलक लगाया गया होगा, ये आज्ञा चक्र है। आप लोगों ने अक्सर एक चीज सुनी होगी, द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, कि जब भी आप अपने मन में कुछ धारणा बनाते हैं, कुछ आप ऐसा सोचते हैं, तो पूरे नेचर में आप अपनी थॉट की ऐसी तरंगे भेजते हैं कि जो कुछ भी आपकी इच्छा में है, जो कुछ भी इच्छा, जो डिजायर आप फुलफिल करना चाहते हैं, नेचर उसको पूरा करता है। लेकिन ये सबके केस में ये चीज़ लागू नहीं होती। कई बार हम ये सोचते भी हैं कि भाई हमने तो बहुत ऐसा डिज़ायर किया कि हमारी ये विश फुलफिल हो गई, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि जब इस सृष्टि की स्टार्टिंग हुई थी तो एक बहुत बड़े बिग बैंग से हुई थी, जिसको हिरण्यगर्भ कहा गया है उपनिषदों में। उस बिग बैंग के दौरान जब इस संसार में पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक शून्य था, पीसफुलनेस थी, शांति थी, स्टिलनेस थी, स्पेशियसनेस थी। उस समय उस गहरी घनी शांति के अंदर एक तरंग उठी, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। और वो इतनी इंटेंस डिजायर थी उस अननोन की कि ये सारी दुनिया बन गई, और ना सिर्फ बन गई, इसका विस्तार आज तक जारी है। इसीलिए जब आप एक अशांत मन से कोई डिजायर करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो जाए, मेरे साथ ऐसा हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, तो ये डिजायर अशांत मन में जहां पहले से इतनी तरंगे हैं, वहां कोई भी डिजायर को पनपने के लिए कोई समय नहीं मिलता। इसका रियल साइंस हमारे ऋषियों को पता था। इसलिए ऋषियों ने मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, लेकिन इस चक्र का नाम रखा आज्ञा। आज्ञा का अर्थ होता है तथास्तु, ऐसा ही हो। तो
जब ऋषि मुनि, हमारे एंशियंट सेजेस और सीयर्स, जब वो साधना करते थे और अपनी चेतना को इकट्ठा करके आज्ञा चक्र पर ले आते थे, तो उनके अंदर एक बहुत गहरा स्पेशियसनेस, एक आकाश वृत्ति हो जाया करती थी। तथा उस वक्त जब उनसे कोई वरदान मांगता था आगे, या वो कोई भी डिजायर करते थे कि ऐसा हो जाए, तो वैसा हो जाया करता था। क्यों? क्योंकि वो जो बुनियादी, जो बेसिक फंडामेंटल नियम है इस दुनिया का, जिसको शांति का नियम कहा जाता है, उसके साथ वो एक मेक होते थे, एक ही लय में, एक ही केंद्र में उसके साथ जुड़े रहते थे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि हमारी भी कुछ भगवान सुने, हमारी डिजायर्स फुलफिल हो, हमें पीस ऑफ माइंड मिले, हमारी लाइफ में कोई खुशी आए, कोई सच्ची खुशी आए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें, जिसमें कि आप अपने मन को ट्रांसेंड कर जाते हैं, आप बियॉन्ड माइंड चले जाते हैं। कुछ देर के लिए थिंकिंग प्रोसेस कम हो जाता है, शांत हो जाता है। अगर आप किसी सुखी व्यक्ति और दुखी व्यक्ति की पहचान करना चाहते हैं, तो वो सीधी सी है कि किस मात्रा में, किसके मन में कितने विचार आते हैं। अगर आप ओवर थिंकिंग से पीड़ित रहते हैं, अगर आप एक्सेसिव थिंकिंग से, लगातार सोचने की आदत से परेशान रहते हैं, तो कभी भी आपको ना तो शांति मिल सकती है और ना ही ठहराव और ना ही एक अच्छा फोकस मिल सकता है। और जितने भी यहाँ तो बच्चे, सभी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, सभी ये जानते ही हैं कि आपके जो रिजल्ट्स होते हैं, जो आपकी पढ़ाई है उसके जो रिजल्ट्स हैं, या लाइफ में भी आगे जाकर आप जो कुछ भी करेंगे, उसमें जो भी उसका आउटपुट है, वो इस बात पर बहुत डिपेंड करेगा कि आप अपने कामों के दौरान कितना फोकस्ड रहें। तो ये आपके फोकस को बढ़ाने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है, आपके ध्यान को और गहरा करने के लिए। एक बार फिर से सभी लोग बैठे बैठे ही अपनी कमर सीधी कर लें और फिर से एक बार हम सोहम ध्यान करेंगे। अपने हाथों को अपने घुटनों पर रख लें और शांति पूर्वक एक लंबा गहरा सांस खींचें। 1 सेकंड के लिए होल्ड करें, छोड़ दें। फिर से एक लंबा गहरा सांस खींचें, होल्ड करें, छोड़ दें। आंखों को बंद रखें और इस भजन में डूबने की कोशिश करें। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीती जाती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीती जाती है। ये सांसों की तेरी गठरी दिनों दिन रीती जाती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीती जाती है। कुटुंब परिवार सुतदारा, स्वप्न सम देख जग सारा। कुटुंब परिवार
जाती है। शांत हो जाए, आंखों को बंद रखें हमारी रिक्वेस्ट पर, जितना आप रख सकें। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। अपने मन में कुछ इस तरह की भावनाएं लाएं। अपने मन की आंख से, अपने थर्ड आई से ये इमेजिन करें कि जैसे एक बहुत बड़ा विशाल कैलाश पर्वत आपके सामने है, जहां भगवान शिव, मां पार्वती, कार्तिकेय और गणपति जी महाराज अपनी पूरी शोभा के साथ विराजमान हैं। और उनके लिए आपके मन से एक स्तुति निकल रही है। आंखों को बंद रखें। जिस लोक में मैं आपको ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, हालांकि यहाँ माहौल नहीं है बिल्कुल भी, पीछे बहुत आना जाना उठना बैठना लगा हुआ है, पर फिर भी जो आगे कुछ लोग बहुत सिंसियरिटी के साथ ध्यान में डूबने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मैं संबोधित कर रहा हूं कि कनेक्ट कीजिए। गणपति जी के दिन है, आप कैलाश पर हैं और एक स्तुति आपके मन में चल रही है। भगवान शिव, जिनके मुखमंडल पर बड़ी स्नेहमयी मुस्कान है, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपका ध्यान लगे, ध्यान में आपकी रुचि गहरी हो और आप मन में गुनगुना रहे हैं। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। हो भोले बाबा, अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी, धौले धारों के राजा, शंकर संकट हरना। भोले बाबा शंकर संकट हरना। जो भी शिव की शरण में आया, जो भी शिव की शरण में आया, मन चाहा फल पाया। भोले बाबा मन चाहा फल पाया। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। भोले बाबा शंकर
ठंडा मीठा पानी अद्भुत अगम कहानी भोले बाबा अद्भुत अगम कहानी शिव कैलाशों के वासी धौले धारों के राजा शंकर संकट हरना शंकर हरना। फिर से ध्यान को अपनी सांस पर ले आए। इसे एक निवेदन समझें। ये हीलिंग, ये शक्तिपात, ये साधना बड़े लंबे समय तक आपके ऊपर असर बनाए रखेगी। आपके विचार कम होते चले जाएंगे, आपको आनंद आने लग जाएगा, आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी। सांस पर ध्यान रखिए। सांस अंदर जा रहा है, सांस बाहर आ रहा है। रिलैक्स होते चले जाएं, थोड़ा सा बॉडी को लूज कर दें। अपने मन में जिस भी इष्ट देवी देवता को आप मानते हैं, उनके चेहरे को अपनी थर्ड आई पर, जिसको मैंने कहा कि ये तीसरा नेत्र है, जैसा भगवान शिव के माथे पर रहता है, जैसा कई बार हम देवी माँ के माथे पर भी तीसरा नेत्र देखते हैं, ये बेसिकली पीनियल ग्लैंड है। और जब आप अपनी दोनों भौहों के बीच में, दोनों आईब्रोज के बीच में ध्यान को केंद्रित करने लग जाते हैं, तो आपका पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है और आपकी एक डिवाइन कनेक्टिविटी उस दिव्यता के साथ, जिसे आप परमात्मा कहें, वाहेगुरु कहें, कुछ भी कहें, क्योंकि ये जो आयोजन है, हालांकि यहाँ सभी धर्मों के बच्चे विद्यमान हैं और हम सभी का रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये जो स्पिरिचुअलिटी है, ये एक ऐसी चीज है कि अगर इसमें आप मन की गहराई में, मन की शांति में उतरने की कला सीख लेते हैं, तो फिर जिस भाषा में आप प्रेयर करते हैं, जिस देवता की आप प्रेयर करते हैं, जितनी देर आप प्रेयर करते हैं, एक डिवाइन कनेक्टिविटी आपको अपने अंदर महसूस होने लग जाती है और आपका सारा स्ट्रेस दूर होने लग जाता है। मैं फिर से आंखें बंद रखिएगा, आपको कनेक्ट करूंगा। पीछे कुछ बच्चे बोल रहे हैं बार बार, मैं 20 बार कह चुका, बच्चों मत बोलो, पर चलो कोई बात नहीं। मैं आपको फिर कनेक्ट कर रहा हूं एक भजन से। ये स्पिरिचुअल गीत है जो आपको आपकी आत्मा के साथ कनेक्ट करेगा और आपको शांत होने में मदद करेगा। शरण में आए हैं हम तुम्हारी। अपने मन में ऐसी भावना लाइए कि सामने आपके देवता विराजमान है, सामने आपके इष्ट विराजमान है, जिनको रो रो कर आपने अपनी मुसीबतों का, अपने दुखों का हाल सुना दिया है। अब उसे आप एक गीत के माध्यम से उनको सुना रहे हैं और परमात्मा आप पर रीझ रहे हैं। जल्दी ही परमात्मा कोई ना कोई रास्ता आपके लिए निकालने वाले हैं। जैसी भी प्रॉब्लम आपकी हो, कोई मेंटल स्ट्रेस है, फिजिकल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, घरेलू प्रॉब्लम है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप किसी को बता नहीं सकते, आज इन बंद आंखों में अपने परमात्मा को सामने रख के अपनी प्रॉब्लम मन ही मन उनको निवेदित कर दीजिए और ये यकीन जान के यहाँ से जाइएगा कि जल्दी ही उसका निराकरण हो जाएगा।
शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संवारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साधन ना हम में भक्ति। जब हम पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं, द्रौपदी का दृष्टांत आपको याद होगा कि जब वो मदद के लिए भागती है, कभी भीष्म पितामह के पास, कभी द्रोणाचार्य के पास, कभी बलशाली पांडवों के पास, जब कहीं से कोई मदद नहीं मिलती तो वो सरेंडर कर देती हैं उस परमात्मा को, अपने कृष्ण को। आप भी अपने अपने कृष्ण को, हनुमान जी को, गणपति जी को, दुर्गा देवी को, जो भी भोलेनाथ आपके भंडारी, जो भी आपके सहयोगी हैं, उनसे गुहार लगाइए, क्योंकि ये सेशन हीलिंग के बारे में है, ये सेशन आंतरिक शक्ति के बारे में है, ये सेशन आंतरिक जुड़ाव के बारे में है। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साधन ना हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। हे नाथ, जब जब भी कोई परेशानी आई, कोई मुसीबत आई, कोई दुख आया, हम दुनिया की तरफ भागे, हम रिश्ते नातों की तरफ भागे, हम सगे संबंधियों की तरफ, मित्रों की तरफ भागे। लेकिन आज हमारा पूर्ण समर्पण जब सब ओर से हार गए, तो हे प्रभु, हमारा संपूर्ण समर्पण अब सिर्फ आपकी ही शरण है, आपके ही चरण है। हे नाथ, हमें बचाएं, हमें सही रास्ता दिखाएं। ना हम ज्ञान जानते हैं ना हम ध्यान जानते हैं। भक्त कहते हैं, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक। जैसे एक पिता अपने बालक पर रीझता है, निस्वार्थ भाव से उसके लिए सब कुछ करता है, इसलिए हे प्रभु, ऐसे ही आप हम पर रीझ जाएं। हमारा तो एक पल भी मन कहीं टिकता नहीं, हमारे पैर नहीं टिकते, हमारा ध्यान नहीं टिकता है। मेरे प्रभु, आप ही आकर हमें बख्शें, आप ही आकर हमें उठाएं। आप देखें हमारे हालात कि हम कितना ध्यान भी कर पा रहे हैं। जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो ठाकुर हम हैं पुजारी। दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। भले हैं हम जो, हे प्रभु अब तो समर्पण कर दिया,
अब तो अपनी ओर निहारो। तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु अगर आप मेरे गुण देखेंगे तो मुझ में कोई गुण नहीं, मैं अवगुणों से भरा हूं। आपको देखना होगा तो अपनी कृपा की ओर ही देखना होगा, क्योंकि मुझ में तो दुर्गुण ही दुर्गुण है प्रभु। भले हैं हम जो तो है तुम्हारे, बुरे जो हैं तो हैं हम तुम्हारे। तुम्हारे होकर भी हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। 700 श्लोकों की गीता भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। अर्जुन लगातार प्रश्न करता है, एक प्रश्न खत्म होता है रक्त बीज की तरह, नए प्रश्न में से नए प्रश्न का जन्म होता चला जाता है। आखिरकार भगवान को कहना पड़ा, अर्जुन सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अगर तेरा मन इस सारे ज्ञान को सुन के ना समझी की हालत में चला गया है, और भी कंफ्यूज हो गया है, और भी परेशान हो गया है, तो अब एक ही रास्ता है, सर्वधर्मान् परित्यज्य। अपनी सारी भावनाओं का, अपने सारे आइडियाज का, अपनी सारी इमेजिनेशंस का त्याग कर दे। मामेकं शरणं व्रज, मुझ एक की शरण में आ जा, सरेंडर की अवस्था में आ जा, समर्पण की अवस्था में आ जा, और तू पाएगा कि वहां कोई दुख नहीं है। तो जहां ध्यान ना लगे, जहां सांस पर मन ना टिके, तो हमें आ जाना चाहिए उस परम पिता परमात्मा की शरण में, जहां पर सुख ही सुख है। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ दया करके मुझको न भुला देना। गणराज मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक। तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक। ये बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। और जब इस तरह की समर्पण पूर्ण भावनाएं जब हमारे मन से निकलती हैं, जब हमारा मन इस समर्पण से ओतप्रोत हो जाता है, उस वक्त जो स्थिति हमारी बनती है उसको भी ध्यान की ही स्थिति कहा जाता है। जैसे मैंने सेशन की शुरुआत में ही कहा था कि भगवान शिव ने मां पार्वती को 112 विधियां दी। अगर कोई भी विधि हमारे काम ना करे
तो समर्पण की विधि, सरेंडर की विधि, हर वक्त अगर आप सुबह स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाई का नियम है, आप जब सुबह सो के उठें तो आजकल ये फैशन है कि सबसे पहले हम फ़ोन पे देखते हैं किसका व्हाट्सएप आया है, किसका इंस्टाग्राम आया है। और जो पहला थॉट जब आपका मस्तिष्क पूरी रात की निद्रा को लेकर के शांत अवस्था में है और उसका एक बहुत ही पॉजिटिव यूज़ आप कर सकते हैं, वो तुरंत हम उस सारी पॉसिबिलिटी को, उस संभावना को ख़त्म कर देते हैं जब हम सुबह उठते ही सबसे पहले इंफॉर्मेशन की बम्बारमेंट अपने ऊपर डालने लग जाते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा विशियस सर्कल है जो हमें भक्ति से तोड़ता है, ये ऐसा विशियस सर्कल है जो हमें ज्ञान से तोड़ता है, ये एक ऐसा विशियस सर्कल है जो हमें हमारे लक्ष्य से तोड़ता है। तो अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि अधिक से अधिक विद्या हमको प्राप्त हो। इसी बात का प्रतीक रूप गणपति जी हैं, जिनके इतने बड़े कान हैं। वो जो कान हैं और लगातार हिलते रहते हैं और लगातार हिलते हिलते उनकी दृष्टि पर से भी आगे धूल नहीं आने देते। गणपति जी अपने आप में ज्ञान का महासागर हैं। उनके बड़े बड़े कान हमें ये बताते हैं कि हमें श्रवण की सेंस होनी चाहिए, हमें सुनना आना चाहिए और हमें हर चीज को जो ज्ञान से संबंधित है उसे बारीकी से सुनना चाहिए। हमारी दृष्टि ज्ञान को लेकर के स्पष्ट और साफ होनी चाहिए। एक छोटा सा दृष्टांत आता है कि मां पार्वती जब अपना स्नान कर रही हैं तो उनके शरीर से वो जो मैल उतारती हैं, जो भी डर्ट है, धूल है, उससे वो एक मूर्ति बना देती है एक बच्चे की और खुद स्नान के लिए चली जाती हैं। आने से पहले भी जब गणपति जी आते हैं तो कई बार हमारे यहाँ जो टेम्पल में कार्यक्रम होता है उनके स्वागत का, कई बार बच्चे आते हैं, पूछते हैं, कहते हैं कि ये कहानी हमें समझ में नहीं आती कि एक तो माँ पार्वती क्या इतना उनको डर्ट है कि उससे एक पूरी मूर्ति बन गई, क्या वो इतने दिनों बाद नहाते थे? ऐसा नहीं है। ये जो भी कहानियाँ हमारी पुराण में हैं उनके बहुत ही आध्यात्मिक अर्थ हैं और कहानियों को अगर हम, जरूरी नहीं कि हम उनको ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें, अगर हम उनको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हर वो कथा जिसको हम श्रवण करते हैं अपने अंदर बहुत सारे अर्थों को समेटे हुए होती है। माँ पार्वती मूर्ति बनाती हैं अपनी मैल से और भगवान शिव वहाँ आते हैं, लेकिन वो जो बालक है जो मूर्ति से पैदा हुआ है, जिसमें प्राण शक्ति आ गई है, वो उनको रोकते हैं और भगवान शिव उनका सिर जो है वो धड़ से अलग कर देते हैं। इस बारे में भी बच्चे कई बार प्रश्न लिख के पूछते क्या भगवान शिव इतने क्रोधी थे तो फिर आप उनको ये क्यों कहते हैं कि वो योगी थे, कि जिन्होंने इतना उनको गुस्सा आ गया, भाई आपको भी द्वारपाल रोकते हैं, कोई चौकीदार रोकते हैं, गेट कीपर्स रोकते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उनका सिर ही काट डालें। ये बात लोगों को मॉडर्न जो है एरा में समझ में नहीं आती है। लेकिन अगर आप इसे एक कहानी की दृष्टि से देखेंगे, अगर आप इसे एक इवेंट की दृष्टि से देखेंगे, अगर आप इसे बाहरी दृष्टि से देखेंगे, भगवान कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च दिव्यमेवं, मेरे जन्म और मेरे कर्म, दुनिया में आके जो मैंने कर्म किए हैं उनको अगर सिर्फ बाहरी दृष्टिकोण से देखोगे तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। लेकिन अगर आप उसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे तो आप समझ पाओगे कि उसके अंदर कितना बड़ा स्पिरिचुअल मैसेज था। भगवान शिव साक्षात परम ब्रह्म है। भगवान शिव पुरुष और प्रकृति, वेदांत में जो दो तत्व कहे गए हैं उसमें पुरुष तत्व का प्रतीक भगवान शिव है। भगवान शिव ही सही मायने में हमारे भीतर की वो अवस्था है जो बहुत ही शांत है और स्थिर है। और पार्वती क्या है? वो उनकी शक्ति है। पार्वती उस स्थिर शक्ति का मटेरियल फॉर्म में आना है।
पार्वती का एक अर्थ पर्वतराज की पुत्री भी है, पार्वती का दूसरा अर्थ जो पर्व से संबंधित है, जिनको पर्व प्रिय है। तो ये पर्व, ये जो उत्सव हम मना रहे हैं, उसमें ये समझना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि पार्वती माँ है क्या। अगर हम सिर्फ उनको एक पंच तत्व का पुतला समझेंगे, अगर हम उनको सिर्फ एक स्त्री समझेंगे, शिव को सिर्फ एक आदमी समझेंगे, क्यों पति पत्नी का कोई व्यवहार समझेंगे, तो हम सच्चे ज्ञान से चूक जाएंगे। तो पार्वती वो मटेरियल अवस्था का प्रतीक है जो उस शून्य अवस्था से शिव अवस्था से प्रकट हुई। और जब कोई ऐसी अवस्था पैदा होती है तो उसके साथ दोष और विकृतियां भी आती हैं। तो वो जो मल है वो सही मायने में उनका कोई फिजिकल किसी डर्ट का प्रतीक नहीं है। इस पूरी कहानी को प्रतीक जानिए। वो मल हमारे मन के बहुत सारे इस तरह के राग, द्वेष इत्यादि हैं जो हमें साधना में बढ़ने से रोकते हैं। तो भगवान शिव उस अज्ञानता का ही नाश करते हैं और फिर कहते हैं कि जाओ, जब पार्वती रुदन करती है लीलावश अपनी, तो कहते हैं जाओ, जो बच्चा उत्तर दिशा की तरफ सिर करके सोया हो उसका सिर, जो भी व्यक्ति सोया हो उसका सिर ले आओ। तो जब उनके गण जाते हैं और उत्तर दिशा की तरफ सिर करके एक हथनी और उनका बालक जो है, उसका बच्चा छोटा हाथी वो सोया है, उसका सिर वो ले आते हैं, जिसका सिर उत्तर की तरफ। उत्तर यहाँ पर नॉर्थ का मतलब है जहां से सारे जवाब आते हैं। हमारे मन में प्रश्न आते हैं लेकिन जवाब कहां से आते हैं? उत्तर की तरफ से। तो वो एक टाइनी, जो एक छोटा सिर है, जिसको आप अज्ञानता का परिचायक कह सकते हैं, उस पर वो एक बड़ा विशाल सिर लगाते हैं। वहां वो ज्ञान और विवेक की स्थापना करते हैं भगवान शिव। वो ऐसा ज्ञान और विवेक जिसमें श्रवण की शक्ति है, जिसमें देखने की शक्ति है। तो बाहरी तौर पे देखने पर यह कार्य बड़ा ही एक कुकृत्य किस्म का लग सकता है, विभत्स किस्म का लग सकता है, लेकिन अगर आप इसका आध्यात्मिक अर्थ समझेंगे कि इसके पीछे क्या बताया गया है, तो आपको समझ में आएगा कि ये कितनी बड़ी और महान परंपरा है, जहां कहानियों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से आपके अंदर सत्य को संप्रेषित किया गया है। अल्टीमेटली ज्ञान को आपके अंदर डाला गया है। फिर वो बनते हैं जिनको लगाते हैं। पहले क्या है? मैल क्या है? विघ्न है। अब जो वो सिर ऊपर लगाते हैं तो विनायक, विघ्न विनायक का जन्म होता है। बोलिए गणपति महाराज की। इस प्रकार से ये कथा है जिसका आध्यात्मिक संदर्भ समझने वाला है, ताकि अपने धर्म के बारे में आपसे कल को कोई प्रश्न करे कि आपके भगवान शिव में तो बहुत गुस्सा था, आपकी पार्वती माता को क्या बहुत मैल निकलता था जो पुतला बना दिया करती। ये सब कथा का मुख्य उद्देश्य नहीं है। कथा का प्राण है कि वो अमूर्त शक्ति जब मूर्त रूप लेती है उसमें कुछ दोष आते हैं जिनका निराकरण वो एक और बड़ी ज्ञान की शक्ति के द्वारा करते हैं। तो इस प्रकार से ये कथा है भगवान गणपति की। और आदि शंकराचार्य भगवान ने जो गणपति जी का स्वरूप का वर्णन किया है, आप सुन के हैरान होंगे। एक तो जो गणपति महाराज का हम पूजन करते ही हैं। आदि शंकराचार्य कहते हैं अजम निर्विकल्पम निराकारमेकम निरानंद मानंद अद्वैत रूपम परम निर्गुणम निर्विशेषम निरीहम परम ब्रह्म रूपम गणेशम भजे हम। वो कहते हैं मैं किस गणपति का ध्यान करता हूं? जो लोग योग को जानते हैं, जो लोग योग की साधना करते हैं, षट चक्रों को जगाते हैं, सबसे पहले मूलाधार चक्र जो आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे स्थित है, वहां पर गणपति का वास बताते हैं। जिन भी योगियों ने साधना की, जिन भी योगियों ने अपने आत्म तत्व को जाना, सबसे पहले गणपति जी को क्यों नमस्कार किया जाता है? क्योंकि आध्यात्मिक जगत में भी पहले रूट चक्रा पर आपको गणपति जी ही मिलते हैं। इसी प्रकार
कहते हैं शंकराचार्य भगवान, अजब जिनका जन्म नहीं हो सकता, निर्विकल्पम, जो हर प्रकार के उहापोह से विचार से परे हैं, निराकार, जिनका कोई आकार नहीं। इसीलिए आकार हम हर साल बनाते हैं। इस बात को ध्यान से समझिए, जितना भी आप ज्ञान अपने साथ ले जाएं, क्योंकि एक जो स्टूडेंट है और एक जो टीचर है, ये समाज की सबसे बड़ी धुरी है। अगर एक स्टूडेंट को बात समझ में आ गई तो वो अपने सब स्टूडेंट्स को आसपास उस बात की चर्चा करेगा, और एक टीचर जो कि उस हजारों लाखों स्टूडेंट्स के निर्माण को करने वाला है, उनके माध्यम से ज्ञान कितना दूर फैल सकता है। निराकार रूप कहा गया भगवान गणपति को, इसलिए हम उनको हर बार लेके आते हैं। हम उनको कहीं बाहर से नहीं, जब हम उनकी मूर्ति बनाते हैं, ये ऐसी सुंदर परंपरा है, हम भगवान की मूर्ति बनाते हैं, फिर उसको प्रणाम करते हैं, आरती करते हैं, यथाशक्ति उनकी सेवा करते हैं, भोग लगाते हैं, और फिर जब हम उनका पूरा पूजन कुछ दिनों अपनी मनवांछित दिनों के अनुसार कर लेते हैं, फिर हम उनको ले जाकर के नदी में, सागर में, वहाँ पर विसर्जित कर देते हैं। इसका क्या अर्थ है कि हे भगवान आप आए, यूं तो आप निराकार हैं, आप हमारी मनोदशा को देखते हुए हमें आंखों से आपका दर्शन हो, हमें आपकी पूजा का सौभाग्य मिले, आप हमारे सामने दर्शन दे, फिर हम मूर्ति का निर्माण करते हैं। आप हमारा भोग स्वीकार करें, आप हमारी आरती स्वीकार करें, आप हमारे पुष्प स्वीकार करें, और बाद में फिर हम मूर्ति पर टिकते नहीं है। हिंदू धर्म की महानता है, फिर हम उसका विसर्जन कर देते हैं कि ठीक है भगवान, अब आपको हम फिर बुलाएंगे, अब आप फिर से इस मूर्ति से निकल करके हमारे अंदर, हमारे मनों में आ जाए। जब आप मंदिर जाते हैं तो आप भगवान को देख करके आंखें बंद कर लेते हैं, आप ऐसे खोल के नहीं प्रणाम करते। बंद करने का क्या अर्थ है? वही ध्यान की ओर इशारा है कि परमात्मा का जो वास है सच्चा, वो आपके हृदय के अंदर है, हृदय प्रदेश में है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, यही इस पूरे के पूरी गणपति जो भगवान की परंपरा है उसका उद्देश्य है, उसका अर्थ है। आगे आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं, गुणातीतमानम चिदानंद रूपम चिदाभासकम सर्वगम ज्ञान गम्यम मुनि ध्येय आकाश रूपम परेशम परम ब्रह्म रूपम गणेशम भजेहम। मुनि लोग अपने हृदय रूपी आकाश में जिस तत्व का ध्यान करते हैं, उस गणपति जी को मैं प्रणाम करता हूं। आप खूब भगवान की आरती गाएं, उनके नाम शब्द का गुणगान करें, लेकिन उन भगवान का सच्चा रूप भी समझें जो साक्षात भगवान आदि शंकराचार्य बता रहे। मुनि अपने हृदय में, जब हृदय मुनियों का ठहर जाता है, जब हमारी तरह उसमें अशांति, अज्ञान और परेशानियां नहीं रहती, तब जो तत्व खिल के आता है, उस गणाध्यक्ष को मैं प्रणाम करता हूं, उस परम ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसी गणपति जी की महिमा भगवान आदि शंकराचार्य ने बताई है। तो मैं ये आशा करता हूं कि इस गणपति महोत्सव में आके आपको मन को ठहराना कैसे, ये जो टेक्निक मैंने आपको बताई, बल्कि बात बीच में रह गई थी, कि जब आप सुबह उठते हैं तो सीधा फोन की तरफ ना जाएं। आप थोड़ी देर उठ के कुछ पानी पिए या जो भी आपका दैनंदिन जो क्रिया है, उसके बाद जाके बाहर किसी बालकोनी में या पार्क में 5-10 मिनट अपने लिए टाइम निकालें। क्योंकि जैसा मैंने शुरू में बताया था सेशन के, कि हमारा शरीर उल्टा पेड़ है, यहाँ मस्तिष्क जो है ये जड़ें हैं। अगर हम किसी पेड़ के पत्तों को पॉलिश करते रहें, उसके तनों को पॉलिश करते रहें, लेकिन जड़ों में कभी पानी ना दें, जड़ों में कभी खाद ना डालें, तो एक दिन वो पेड़ मुरझा जाएगा। इसी तरह से अगर हम अपने मस्तिष्क के लिए कुछ ना करें, लगातार सूचनाओं की बाढ़, विचारों की बाढ़, ये जो फोटोग्राफ्स, वीडियोस, जिसका हमारी जिंदगी में कभी कोई काम भी नहीं आने वाला,
उसको भी हम लेके बैठे रहते हैं, फॉरवर्ड करते रहते हैं। चलिए, इसका जो फायदा है कि ज्ञान उसमें हमें देखने को सुनने को मिलता है, वो फायदा अच्छा है। लेकिन सुबह का उठने के बाद का आधे से 1 घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह से रात को सोने से पहले आधे से 1 घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप उस समय पर कम से कम अपने फोन को रख के जो आप बनना चाहते हैं, लंबा गहरा सांस, मैंने आपको बता दिया, बड़ी सिंपल टेक्निक है कि घुटनों से ऐसे हाथ रख लें और करें 2-4 बार। करो, ऊपर सांस खींचो, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ऐसे सुबह भी करें, शाम को सोने से पहले भी करें। अगर 40 दिन भी आप लगातार इस अभ्यास को करते हैं तो आपको खुद ही महसूस होगा कि मन को जिस थॉट पे लगाएंगे, मन को जिस बुक पे लगाएंगे, जो भी समझना चाहेंगे, ग्रहण करना चाहेंगे, उसको आप ग्रहण करते चले जाएंगे। इस आदत को आप अपने साथ यहाँ से जाते समय ज़रूर लेकर जाइएगा। तो 4:30 होने को आए हैं। मैं चाहता हूं कि हम आप सब मिलके, गणपति जी का एक बड़ा सुंदर मंत्र है, अगर उसका थोड़ा जाप कर लें, फिर हम समापन की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप सबको ये आता ही होगा, पीछे पीछे दोहराना है आपने। ओम गंगणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, मंगलमूर्ति मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, मंगलमूर्ति मोरया। गाएं आप, ओम गणपतये, बहुत अच्छा, सिद्धि विनायक, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, मंगलमूर्ति मोरया। अब गाएं, ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, मंगलमूर्ति मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, मंगलमूर्ति मोरया। बोलिए गणराज भगवान की। तो इस प्रकार से ये सेशन जो है, ये नई चेतना का प्रवाह आपके जीवन में करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। क्योंकि हमारे फाउंडर, चेयरमैन, परम आदरणीय श्री नंदकिशोर गर्ग जी का बहुत ही स्नेह हमारे ऊपर रहता है, और उनका ये मानना है कि हमें एजुकेशन में तो आगे बढ़ना ही है, लेकिन साथ ही साथ अपनी संस्कृति से भी जुड़ना है, अपने संस्कारों से भी जुड़ना है। साथ ही यहाँ हमारे जो बड़े भ्राता आदरणीय मोहन गर्ग जी, उनकी धर्मपत्नी आशा जी, साथ ही अनु जी, सतीश जी, सेक्रेटरी साहब, और भी गणमान्य लोग, मैं कोई नाम भूल जाऊं तो क्षमा कीजिएगा। सबका यही मानना है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो,
और मैं आपको बताऊं कि जब भी हमारे ये दिन त्योहार आते हैं, इन दिन त्योहारों में एक वाइब होती है, ना सिर्फ बाहरी ऊर्जा बनी हुई होती है बल्कि प्लैनेटरी ऊर्जा भी कुछ इस तरह से बनी होती है कि अगर आप इस ज्ञान को, ध्यान को अपने जीवन में उतारने की जरा सी भी कोशिश करते हैं तो वो थोड़ी सी कोशिश भी बहुत ज़्यादा असर पैदा करती है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मैं गणपति जी से प्रार्थना करता हूँ कि जितना भी आपने सुना वो हमेशा आपके साथ रहे, कि सुबह और शाम के समय में, जब मैं सुबह उठ रहा हूँ, जब शाम को सोने जा रहा हूँ, तो फ़ोन मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। मेरी अलर्टनेस, मेरा ध्यान, मेरा पीस ऑफ माइंड मेरे लिए ज़रूरी है। हालांकि फिर भी बहुत आपने एक संयम बनाए रखा, पर ये इस सेशन की ही दरकार है। आप अपनी ओर से बहुत अच्छे से यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन ये सेशन की ही दरकार है कि हम थोड़ा और भी पीसफुल एनवायरनमेंट इसमें रखें, और जैसे लाइट्स वगैरह भी ज़रा कम हो, डिम हो जाए, तो फिर आपको अपनी कनेक्टिविटी में और ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप बेशक इसको 10 मिनट रोज़ाना से शुरुआत कर सकते हैं कि 10 मिनट आप कुछ नहीं करेंगे, पार्क में जाके बालकोनी में बैठेंगे, लंबे गहरे सांसों का अभ्यास करेंगे और फिर उसके बाद शांति से अपने आते जाते विचार को देखेंगे, आते जाते सांस को देखेंगे। सोहम सोहम के साथ वो स्थिति इतनी आनंदमयी होने लग जाती है कि उसमें आपको ग्लिम्सेस आते हैं समाधि की। कुछ दिनों बाद क्या होगा कि जैसे अभी तो लगातार थॉट के पीछे थॉट हुक में बंधा हुआ जैसे चला आ रहा है, फिर आपको क्या लगेगा, एक थॉट आया, वो चला गया, फिर थोड़ी देर तक कोई थॉट नहीं आया। इन दोनों थॉट्स के बीच का जो गैप आपका बढ़ता चला जाएगा, वो स्थिति आपको अपने अंदर बड़ा ही आनंद देने वाली हो जाएगी। उसी को रियल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कहा गया है। तो आप इस नियम को यहाँ से सीख के जाएं और इसको अपने जीवन में धारण करें। और मोहन जी की भी जैसी इच्छा है, वो बड़ा ख्याल रखते हैं बच्चों के मानसिक विकास का, कि बच्चे बाहर से पढ़ लिख के खूब एजुकेटेड हो जाएं और खूब नंबर लेके आएं, लेकिन जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो बच्चे उसे संभाल भी सकें। कोई नेगेटिव परिस्थिति आ जाए तो बच्चों के अंदर इतना करेज होना चाहिए कि वो, उनके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए, इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि वो अपनी उस परिस्थिति को संभाल सकें। तो इस प्रकार के आयोजन आप लोगों को इसमें लाभ लगेगा तो आगे भी होते रहेंगे। जितने भी यहाँ पर आयोजक हैं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने बहुत ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Acharya ji, for the beautiful musical meditation program and making us realize the significance of meditation in our hectic and busy schedules. May I now request Shri Mohan Garg ji, Shri Satish Garg ji, Shri Amit Agarwal ji, Srimati Asha Garg ji and other dignitaries to kindly come on stage to felicitate Acharya ji with a memento as a token of gratitude and also for the group photograph. आचार्य जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने हमारी विनती स्वीकार की और आज के कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। उन्होंने जो भी बातें बताई हैं वो कुछ ना कुछ आप ग्रहण कर कर जरूर जाएं। जैसे छोटी सी बात बताई मोबाइल के बारे में, दूसरी, जब भी कोई ना कोई हर एक को समस्या आती रहती है जीवन में, दुख परेशानियां चलती रहती है, तो उस टाइम कैसे अपने को संभालना है, अपनी मन की शक्ति से संभालना है। साथ में जैसे उन्होंने कहा कि हम हरि शरणम हो जाएं, भगवान की शरण में हमेशा रहें। जो गीता का अंतिम उपदेश यही था कि मेरी शरण में आ जाओ। तो छोटी सी बात है, बस भगवान की शरण में अपने को मानो और उनकी शरण में रहोगे तो मानसिक शक्ति भी आ जाएगी। हमेशा उम्मीद जगी रहेगी कि हमारे साथ अच्छा ही होगा, अंत भला सो भला होगा। तो यही बात माने। और कुछ जो भी अभी स्टूडेंट और हमारे फैकल्टी विद्यमान हैं,
जिनको जो भी अच्छा लगा वो एक बार जोरदार आचार्य जी के लिए फिर से ताली बजा दें। और इनका आचार्य जी का कार्यक्रम हम कभी भी फिर करा सकते हैं। जो चाहते हैं कि दोबारा से उनका या हर माह होता रहे, वो भी एक बार जोरदार ताली बजाएं कि वो चाहते हैं कि आचार्य जी हमारे बीच में आते रहें। आज के इस कार्यक्रम के संयोजन में हमारे प्रोफेसर शंकी शर्मा जी ने, हमारी डायरेक्टर्स ने, राकेश चौरसिया जी ने, जिन्होंने भी अपना योगदान दिया, उन सबका धन्यवाद। और अब आचार्य जी का पुनः एक बार आभार, स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। आ जाए। जोरदार तालियां बजनी चाहिए एक बारी। एक बार बोलेंगे, एक जयकारा लगाएंगे, गणपति बप्पा। अब थोड़ा सा और पर्व की इसमें आ जाए स्थिति में, गणपति बप्पा।